Praise and thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद. Really, it's a wonderful time when God teaches us and when we experience His teaching in our life. ये बहुत ही अद्भुत समय है जब परमेश्वर हमें सिखाता है और हम उनका जो शिक्षण हमारा जीवन में लाता है. Because just hearing and not practicing will not glorify or nor it will help us in our spiritual growth. केवल सुनने से और हमारा जीवन में उसको लागू नहीं करने से हमारा जीवन में कोई आत्मिक उन्नति नहीं होता है. A similar thing which I have experienced in my own life, which I would share where I could encourage. और एक ऐसे एक बात जो मेरा जीवन में हुआ वो मैं बांटना चाहता हूँ ताकि हम प्रोत्साहन पाए. Because many of the times we read the word as it is written and we take it like, we take it that it is a promise and definitely there will be a help for us. काफ़ी बार हम वचन से कोई कुछ पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये एक वायदा है जो हमें कुछ मदद कर सकता है. Similarly, once I was asking God what is going to happen and how things I would face in the days to come. वैसे ही मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि क्या होने वाला है और आगे के दिन मैं कैसा उसका सामना करूं. There was a verse which I got that was from Isaiah chapter 43 verse 2. आइज़िया 43 उसका दूसरा वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया. It says, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, they shall not you shall not be burnt. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा और जब तू नदियाँ में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी. जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी. When I read this verse, it was very positively and I was very much encouraged with this verse at that point of time. जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला उस समय. Many of them, they take it as a promise, they receive this promise and they feel very much delighted and happy about this verse. बहुत सारे लोग ये वचन पढ़ते और बहुत प्रोत्साहन पाके बहुत ही खुश महसूस करते ये वचन पढ़ के. That God is there with me and I need not to worry. कि परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे डरने का जरूरत नहीं है. There is a pinch over here which I got to realize in my own spirit and where God showed me that. लेकिन इधर एक बात है जो मुझे मेरा आत्मा में महसूस और परमेश्वर ने मुझे बताया. There the Spirit spoke to me like this. और आत्मा ने मुझसे ऐसा बात किया. That you have to pass through the waters. तुझे जल से होकर जाना पड़ेगा. You have to go through the rivers. तुझे नदियाँ से होकर जाना पड़ेगा. You have to go through the fire. तुझे आग के द्वारा यात्रा करना पड़ेगा. And I realized it like this, that there is some things which I need to go through, and going through the waters, you know how we all know how it is going to be. We might have not experienced it literally, but it is something very serious. हमें मालूम है कि जल से होकर गुजरने का अनुभव क्या है. शायद हमने वास्तविक रीति से उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन हमें मालूम है कि कितना मुश्किल का समय है. Like when you do not know swimming and you are in a deep water and and there is nothing, like your feet is not reaching the ground, it's very difficult to survive it. You can't even breathe. अगर हम तैरना नहीं जानते हैं और हम बहुत गहरे पानी के अंदर है, हमारा जो पैर है वो जमीन पर नहीं लगता है, तो हमें श्वास लेना भी मुश्किल होता है, हम बच नहीं सकते हैं. In my childhood days, I have experienced that when water would just try to drown me down. और मेरा बचपन के दिनों में मैंने इसका अनुभव किया जहाँ मेरा पानी जो है सर के ऊपर से जाता था. Imagine the people, those who go for fishing in the out deep sea, how much risk they take in their life when they go, and it's again the risk that they take up and go. कल्पना करके देखिए जो मच्छी पकड़ने के लिए गहरा समुद्र में जाते हैं वो कितना जोखिम का सामना करके उधर जाते हैं. Every day there is a challenge. हर दिन एक चुनौती है. And some days it is like that. They have to, many of the times they come empty-handed. There's nothing. ऐसा कोई कई दिन होते हैं जहाँ उन्हें कुछ मच्छियाँ नहीं मिलती और ऐसे खाली हाथ लौट जाते हैं. And when it talks about fire, a little burn we cannot bear in our finger.
जब आग के बारे में बोला है, जब हमें छोटा सा एक जलने का अनुभव हमारा उंगली में भी होता है तो हम उसे सह नहीं पाते हैं. Like we, whenever like unknowingly we touch some hot vessel and we get burned, and how much it would burn our hand or the area where it is burnt. अचानक रीति से अगर हम कोई गर्म जो बर्तन को छूते हैं तो हमारा अगर हाथ में जल जाता है तो कितना ज़्यादा हमें दर्द होता है. That little burn is how much serious. वो छोटा सा जो जलना है वो कितना गंभीर हो जाता है. In one of the in my working days earlier, मेरा काम के दिनों में, पिछले शुरुआत के दिनों में, one person there was no permission for him to work, and there was no permission allotted. He did not take permission to work in that one area where you need to take permission. एक जगह है जहाँ काम करने के लिए अनुमति लेना पड़ता है, उसने वहाँ पे अनुमति नहीं लिया था. And it was a Sunday, and I also was there that day. और उस दिन रविवार का दिन था और मैं भी उस जगह पे था. And unknowingly he entered there and he started working there, and he did some he used some lighted torch over there. गलती से वो जगह पे गया और उधर काम करने के लिए लगा और एक जलने वाला टॉर्च का उसने इस्तेमाल किया. Like what they use for this welding and all, where they do welding, so that sort of work which should not be carried there, he did there. जो वेल्डिंग का काम के लिए इस्तेमाल करता है वो वहाँ पे नहीं करना चाहिए ऐसा जगह था, पर उसने वैसा किया. That entire area lit into fire. वो पूरा जगह जो है आग से आग फैल गया उधर. And I was there around, and I did not know what to do. I just ran with a fire extinguisher inside the fire, and I was just blazing it off. और मैं उस जगह पे था, मुझे नहीं मालूम था क्या करना चाहिए, तो मैं वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके सब जगह उसको मार रहा था. And he was almost on fire. I tried to whatever I could blaze, and then I took him. I caught his hand and I took him down, and I said there was a water tap running, so I just put him, made him to sit there. और वो शायद पूरा जल भी गया था, थोड़ा बहुत जल भी गया था, तो मैंने उससे हाथ पकड़ के बाहर निकाला और उधर एक पानी का नल उधर खुला था, उधर उसको बोला कि तू उधर जाके लेट जा करके. Then made him to sit. हाँ, उधर जाके बैठ जा. I didn't even worry about myself. I was just thinking about that person, like how could I save him. और मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था, मैं ऐसे सोच रहा था कि वो व्यक्ति को कैसे मैं बचा सकता हूँ. And end of the day, like he was almost I think so around 60% burn, where people normally don't survive 60 to 70% burn. और उसको आखिर तो 60 से 70 तक का तो उसका जल गया था, शायद लोग बच भी नहीं पाते ऐसा अवस्था में. He was emergency admitted in the medical college, and he was admitted there for treatment. उनको मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी एडमिशन देना पड़ा और उधर उसको ट्रीटमेंट हुआ. And later on I realized the burn which had burnt him, almost like it would have finished, but God's grace he survived. और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि अगर वैसा जलना अगर होता वो शायद मर भी जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया. That's like something where one cannot realize how fire can burn, and how difficult and what sort of pain he would have gone through at that point of treatment when he went. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा अवस्था में वो आग कैसा उसके ऊपर लगा और कितना दर्द उसने महसूस किया रहेगा जब उसको ऐसा जलने का अनुभव हुआ. It's very easy when we read it like this, but when you are going through that point of difficulty is the challenge, and that is the point of breakdown. और हम ऐसे पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो वास्तविक अनुभव जब हम आग के द्वारा जाते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कितना गंभीर ऐसा अवस्था है जो परमेश्वर हमें लेके जाता है. When I read this verse, the only point which came to me, I just thought, and then I shared it with my wife, and I told her that this is the verse God has given me, but don't take it on the positive side. There is difficult situation which would come across, and we have to go through that. जब मैंने वचन पढ़ा तो ये घटना भी मेरे पत्नी से मैंने बांटा, तो मैंने उन्हें बोला कि खाली उसको एकदम खुशी से मत लो, लेकिन ऐसा कुछ परिस्थिति आएगी जहाँ पे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. And I also defined and told her that it is not going to be for a moment or for a small time. It is going to be a long period of time,
and we have to be ready and be prepared for that. और वो छोटा समय के लिए नहीं है, शायद काफ़ी समय के लिए होगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए. And I really thank God when after that, when we went through that, I again saw that verse, and I thank God for that. और उस समय के बाद जब मुश्किलों के समय आया, तभी मैं वापस वो वचन को याद करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया. At times God does give us revelations and helps us and makes us know that what is going to come ahead. कभी कभी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आगे जो आने वाली बातों के बारे में हमें तैयार करता है. And a preparation also God definitely gives us for that. और परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार भी करता है. And according to the same verse, it was times like it was almost, I remember for about 2 to 3 years, it was a time of difficulties, it was a time of challenges, trouble, it was like going through the water and fire. उसके बाद शायद 2 से 3 साल बहुत सारा तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा, बहुत सारा मुश्किलें मेरे जीवन में आए, शायद ऐसा कि जैसा आग और पानी के द्वारा मुझे चलना जाना पड़ा. Yes, it was literally like even to the point like I had to just run away and get away from, just wanted to get rid of certain things. और ऐसा भी परिस्थिति आया जहाँ मुझे भाग के कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा, ऐसा भी अवस्था आया. It even came to the point of like our relationship, there was to explain like where we would have to live one another. ऐसा भी परिस्थिति आया जहाँ हमारा मेरा और संबंध के बीच में थोड़ा अलगाव होने लगा और मुझे कभी छोड़ने जैसा लगा. A point where I decided that I would leave my wife also. ऐसा भी अवस्था आया, शायद मैंने ऐसे सोचा कि मेरा पत्नी को भी मैं छोड़ दूंगा. That is where you realize how God helps us and how God works in our life. ऐसा परिस्थिति में हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कैसा हमारा जीवन में काम करता है और हमें कैसा हमें बनाता है. Another verse in Psalms 23 you read there. भजन संगीता उसका 23 में हम पढ़ते हैं. It says over here, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they shall comfort me. वो चौथा वचन में से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है. It is a time when we come to the brokenness and when we come to the feet of the Lord. ऐसा समय है जब हम एकदम टूटा अनुभव करता है और हम परमेश्वर के पैरों पे हम गिर जाते हैं. And from that time I realized that never think that life is going to be happy always. There are challenges which would come unknowingly in front of you. उस समय से मैंने सोच लिया कि कभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा एकदम खुशी के दिन होंगे हमारा सामने. चुनौती का सामना करना पड़ेगा जहाँ हमें बहुत सारा परेशानियाँ होगी. I believe those 3 years was the best times that we had, that we experienced in our life. और उन 3 साल मुझे विश्वास है कि वो सबसे उत्तम समय है जो मेरा जीवन में मैंने अनुभव किया है. Because God brought us to that point where I could realize that there is nothing possible. I came to an end that even to the point I felt like to finish my life also. और उस समय मैं एकदम मेरा जीवन में एकदम निचला स्तर में आया और बहुत ही निराशजनक स्थिति में ऐसा भी सोचा कि मैं मेरा जीवन का भी अंत कर दूं. I don't know, some thoughts like this came, like this also, like just keep on walking in the street, some bus or some vehicle should some dash and I should die, like that sort of situations and thoughts used to come. ऐसा भी मैं सोचता था कि शायद कोई गाड़ी बस कुछ आएगा उसके सामने मैं खड़ा रह के मर जाऊँ, ऐसा भी अवस्था मेरा जीवन में आया था. So frustrated about life at that point of time, like I was going through, and which is beyond explanation, that I feel that some of us might have realized or gone through like that, just ending yourself. इतना बड़ा मेरा जीवन में निराशा था, इतना तकलीफ था, और शायद हम में से कोई ऐसा उस अवस्था से गुजरा हो गया
होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Not understanding the values that what God has kept, but just thinking in my own self and taking own decisions and making own plans, like this is how it should be and this is how things should end. और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, लेकिन हमारा ही मन में सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं मेरा अपने लिए ऐसा योजना बनाता हूँ, ऐसा सब सोच के हम आगे बढ़ते हैं। But God has always good plans, and the promises that God gives us, maybe at some point of time we may go through some difficulties or trials or some sort of things which would where we have to face in our life, challenges. लेकिन परमेश्वर का हमेशा हमारे बारे में एक अच्छा योजना है। शायद हमारा जीवन में कुछ तकलीफ़ें या कुछ मुश्किलें हमारे जीवन को सामना करना पड़े, But it helps us so that we become more strong in our spiritual life. वो हमें मदद करता है ताकि हम हमारा आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ पाए, मजबूत हो जाए। And it's only God who can strengthen our inside, because outside we may look, when you look at me we may feel that this person is physically strong or is very happy, but it is the inside where God knows very well. हमारा जो बाहर से हम शायद बहुत मजबूत या बहुत हिम्मत वाला लगते रहेंगे, लेकिन अंदर का खाली परमेश्वर जानता है। केवल परमेश्वर ही है जो हमें अंदर से मजबूत कर सकता है। Sometimes we may run out of one problem and which we are facing, we may try to run away, then we face another problem, from there also we try to run away, but then at another place we are encountered and we fall. हम शायद एक समस्या से बच के भाग के दूसरा समस्या के और जाते हैं, तो उधर और एक समस्या आ जाता है, उधर से बच के हम जानते हैं तो तीसरा और एक आ जाता है। तो वैसा हमारा जीवन कभी कभी हो सकता है। Like what brother Vardra said, like running away from the lion, then you're caught up with the bear and then you're bitten by the snake. जैसा वरदराज भाई ने अभी बताया कि हम शेर से भागते तो भालू का सामना करना पड़ता है, उससे भागेगा तो एक शायद एक सांप हमें डच लेता है। I feel this is the life that I need to live, and challenges are there. I should never think that things around is going to be so much helping me out, but always be ready that I will encounter something which would just come in front of me just like that. हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारा जीवन में चुनौती आएगा, ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा, हमें सामना करना पड़ेगा और उसमें हमें हिम्मत पाना है। And when I really overcome that, God's grace is there to help me every moment, and it is again when I go to the feet of the Lord and ask, and we all know and we believe that His word is so clear that He will not leave us nor forsake us. हम जब परमेश्वर के पैरों के सामने हम घुटना टेकते हैं तो परमेश्वर हमें मदद करता है, और उसका वचन है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। And that is where the strength God gives us, where we can fight every odds in our life. और उस समय परमेश्वर हमें हिम्मत देता है ताकि हम जीवन में होने वाला सारा जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। That is where God helped me out, and I really thank God the way He has led me through, and still I am learning. I'm not at all perfect, and I still want to learn more. और वैसा परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और अभी भी मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे और सिखा रहा है। Because there are areas where I still need to work out, and I'm working, and God is helping me. और ऐसा मेरा जीवन में क्षेत्र है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है। Praise and thank the Lord. प्रभु को धन्यवाद। I thank God for the encouraging word. परमेश्वर ने दिया हुआ प्रोत्साहन का वचन के लिए धन्यवाद। For we heard that every trial having the expiry date. हमने सुना कि हर एक जो समस्या है नहीं तो तकलीफ है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। So it was very encouragement for me. मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का बात वचन था ये। We read 1 Samuel chapter 30 पहला सामुएल उसका 30 verse 6. It is mentioned that उसका 6वां वचन in the last part David strengthened himself in the Lord his God. उधर लिखा है कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। So only one strength we have, that is from the Lord. और एक ही हमारा प्रोत्साहन है कि परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। So even in the pilgrim progress we hear that there is the pit of discouragement. और हम वो पिलग्रिम प्रोग्रेस का पुस्तक में पढ़ते हैं कि उधर भी एक निराशा का एक बड़ा गड्ढा होता है। So whenever we are going in the discouragement, it was very pit, and our strength are limited, and we are not able to come out.
और हम जब भी वो निराशा का गड्ढे में गिर जाते हैं तो हमारा जो सामर्थ्य है बहुत ही कम रहता है और हम उससे खुद से बाहर नहीं आ पाते हैं। There is one word in Proverbs chapter 24 verse 10. नीति वचन उसका 24 का 10 में ऐसा एक वचन है, If you are slack or discouraged in the day of distress, your strength is limited. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरा शक्ति बहुत कम है। So this is what David actually he should discouraged and his strength also limited, but he strengthened in the Lord. दाऊद भी उस समय में उसका शक्ति जो है बहुत ही कम था, लेकिन उसने परमेश्वर में हियाव बांधा। So that is what God encouraging me, that whenever I am getting difficult time or discouragement or failure, or I am not able to obey to the word of God, or I am not able to live a godly life, so my strength is limited, I am going into the discouragement. इसलिए परमेश्वर ने मुझे उत्साह दिया कि जब भी मैं निराशा में जाता हूँ, वचन पालन करने के लिए नहीं होता है, जब मैं गिर जाता हूँ उस समय मेरा सामर्थ्य जो है बहुत ही कम है, इसलिए मैं गिरता हूँ। So I recently heard one story. हाल ही में मैंने एक कहानी सुना। So one man in entire life is all are failure. उसका एक व्यक्ति था, उनका जीवन पूरा एक हार के समान था, पूरा हारा हुआ जीवन था। So he was thinking that why I am getting so many failure, I don't have any hope. और वो सोचने लगा कि मेरा जीवन में इतना हार क्यों हो रहा है, मेरा जीवन में कोई आशा क्यों नहीं है। Then he want to go some wise man or guru like. तो उन्होंने एक ज्ञानी जो गुरु है उनके सामने गया। Then the man, the guru took him for the horse race. तो गुरु ने क्या किया, उन्हें एक घोड़े का रेस जो रहता है उसमें उन्होंने लेके गया। So he told me I am already discouraged, I don't have any money to go for the horse race. तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से निराश हूँ और ये घोड़े का रेस देखने के लिए मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। Okay, no problem, I will take you. और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। So in the horse race, one horse was going very fast. वो घोड़े का रेस में एक घोड़ा जो है बहुत तेज दौड़ रहा था। So that guru asked him, do you know the horse is going to get prize? Whether the horse is no. और वो गुरु ने उनसे पूछा क्या वो घोड़ा जानता है कि क्या उन्हें इनाम मिलने वाला है, प्राइज मिलने वाला है, ऐसा जानता है क्या? No, he told no, how horse will know. He don't know. तो उन्होंने कहा है नहीं, घोड़े को तो मालूम नहीं है, क्योंकि घोड़े को कैसा पता लगेगा कि उसको इनाम मिलने वाला है, ऐसा सब। Then he asked why then the horse is running very fast. तो उन्होंने पूछा कि फिर ये घोड़ा इतना तेज क्यों दौड़ रहा है? He told me I already discouraged. I don't have. Actually, I coming to you. I will get some response answer, but you are asking so many questions to me. तो उन्होंने कहा मैं तो एकदम निराशा में है, मैं एकदम गिरा हुआ आदमी है, मैं तुमसे उत्तर के लिए मैं आया हूँ, पर तुम ही मुझे बहुत सारा सवाल पूछ रहे हो। Then he told me, no, you tell the answer. तो उन्होंने कहा तुम मुझे एक उत्तर तो दे दो। You already know, because the man in the horse, he is beating him very severely. That is the reason the horse is running very fast. तो उन्होंने कहा वो घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा है उसे बहुत जोर जोर से मार रहा है, इसलिए वो घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा है। So that is what the guru told immediately. So whenever you are getting beating, it is like a horse, God hand on upon you. So God is giving some trials or difficulty. That time you should not discouraged. You have to go fast and reach the goal. तो वैसा ही वो आदमी बोला कि जब भी तेरा जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ होता है, तो परमेश्वर वो घोड़े को जैसा तेज भगाता, वो आदमी जैसा घोड़े को तेज भगाता है, वैसा परमेश्वर हमें तेज भगाना चाहता है। इसलिए तुम निराश नहीं होना है, लेकिन आगे बढ़ना है। So that is what even recently I heard from Brother Zach. If you don't have a joy in the law, in the Christian life, which means your Christian life is a counterfeit. वही मैंने भाई जैक से पिछले दिनों में सुना, अगर हमारा मसीह जीवन में एक खुशी का अनुभव नहीं है तो हमारा मसीह जीवन जो है वो एकदम नकली वाला है, सही वाला नहीं है। So that is what we read in Hebrew chapter 1 verse 9.
इसलिए हम हिब्रानी 1:9 में ऐसा पढ़ते हैं, You have loved righteousness and hated lawlessness, therefore God your God has anointed you with the oil of gladness above your companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर किया है रखा, इस कारण तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। So it is always joyful whenever we are obeying, whenever we are going into difficulty, but we are not discouraged. It is one of the joy which is we are getting from the Christian life. हम जब बहुत सारा समस्याओं तकलीफ़ों का सामना करता है और उधर हम निराश नहीं होते, हम आज्ञा पालन करते, उसमें बहुत आनंद है और आनंद से हम आगे बढ़ सकते So हैं। that is what in the recent time I am not able to give proper time for my family. I was totally distressed and discouraged. और पिछले दिनों में मैं मेरा परिवार के लिए उतना समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं बहुत शोकित और निराश जैसा हो गया था। But always hope, there is hope. लेकिन हमेशा एक आशा है। So we can come to the, I come to the Lord and I strengthen in the Lord, so I can go, even though I am getting beating or trials, difficulty, but I have to run fast and I have to reach the goal. और इसलिए मैं परमेश्वर में बल पाता हूँ, यहाँ तक कि मेरा जीवन में बहुत सारा समस्या है, मेरे को मार मिलता है, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, परमेश्वर के द्वारा आगे चल सकता हूँ। I don't want to give room for discouragement. मुझे मेरे जीवन में कोई निराशा को स्थान नहीं देना है। Amen. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटा सा पैसेज रीड करना चाहता हूँ जहाँ पे लास्ट हफ्ता गया हुआ हफ्ता में मुझे प्रोत्साहित मिला था। दूसरा राजा, उसमें से एक छोटा सा पैसेज था जो मुझे एक प्रोत्साहन मिला था उसमें। तो दूसरा राजा 5वां अध्याय में एक छोटी लड़की का उदाहरण दिया है उसमें। हम कई सारे ऐसे उदाहरण नया वाचा में देखते हैं कि अपोस्तल या कोई भी हो, उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे और उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे थे जिसमें हमें पढ़ने को मिलता है। बट यहाँ पे एक छोटी सी लड़की का उदाहरण से मेरा जो जीवन है वो बदल गया था और उसमें से मुझे कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे एक ऐसा एक स्टोरी है ऐसा, नामान का जो उसका जो साथी थे वो एक मार्केट में जाते हैं और एक ज़बरदस्ती एक लड़की को, छोटी बच्ची को खींच के लेके आते। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो छोटी बच्ची थी, मतलब कहीं एक 10-12 साल की रहेगी। जब पे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उस उम्र के रहते हैं। तो वहाँ पे वो बच्ची को लेके जाते कैप्टिव, उसको बंदी बनाकर लेके नामान के घर पे उसकी पत्नी को उसको अर्पित करते ताकि वो उसका सेवा कर सके। और मैं सोच रहा था ये कैसा, मतलब उसके पीछे क्या है, वो लड़की का नाम क्या है, कुछ नहीं दिया है। बट मैं ऐसा सोच रहा था वो लड़की कितना एक 10-12 साल की जो अपने माता पिता के बंधन में थी और मतलब उसको कुछ इतना जानकारी नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि कैसे उसको लेके जाते, मतलब उसको खींचकर उसके माँ बाप उसको रोते हुए उसको पकड़ के नहीं करके चिल्लाते हुए रोते हुए, उसकी माँ कितनी बेरहमी से उसको लेके गए रहेंगे और उसको वहाँ पर बंदी बनाकर उसके पत्नी को सेवा करने के लिए लेके आए थे। तो वो जब जैसे आपने आज सुना तो कितना स्ट्रगल्स, कितना उसने तकलीफ़ें, कितना उसने डेडिकेशन उसने वो लड़की झेला रहेगा। लेकिन वहाँ पर उस लड़की का एक उदाहरण ऐसा दिया था, हमको पता है कि नामान जो है वो कोड़ी का बीमारी से बीमारी रहता है, उसको कोड़ी का बीमारी रहता है। तो उसने एक चीज़ वहाँ पे बोला कि इतना सारा सह के भी उसने अपना अंदर जो विरुद्ध, नामान के विरुद्ध नहीं रखा या उसकी पत्नी के विरुद्ध नहीं रखा, लेकिन वो एक सलाह देती है कि नामान को बोलो कि वहाँ पर एक प्रॉफिट है जो मतलब इस कोड़ी का इलाज कर सकता है, नामान को बोलो कि वहाँ पर जाए। तो मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं इतना एज होके भी मैं कई सारे ऐसे तकलीफ़ें आते हैं जहाँ पर मैं
किसी आदमी या किसी बहन को मैं माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो अंदर है वो कड़वाहट मेरे अंदर है। तो मैं ये बंदी जो छोटी सी लड़की मतलब 10-12 साल की लड़की रहेगी, उसको कैसा ये मतलब पता रहेगा कि उसको माफ़ कर दे और उसको उसका कुष्ठ रोग का जो है वो उसको सलाह दे कि जाके अच्छा हो जाए। तो मैं सोच रहा था कि वो कितना नम्रपना, उसका माँ बाप ने उसको कैसा बड़ा किया रहेगा। तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं अपने घर में मैं कैसा एक उदाहरण बन के रहूँ कि अब मेरा उदाहरण देके मेरी बच्ची कैसा उसको देखे। तो मैं ये सोचा था वो बच्ची भी अपना माँ बाप को देखकर या उनसे कुछ सीख कर कि हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी का हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो वही आत्मा उसके अंदर आकर और उसने नामान को उसका अंदर में कुछ भी कड़वाहट नहीं ताकि बल्कि उसको भला के लिए उसने वो कोड़ी का इलाज बताया। और हम पढ़ते उसके बाद में कि नामान वैसे ही वो सलाह लेकर, वो छोटी बच्ची का सलाह लेकर एलिशा के पास जाता है और वो वहाँ पर वो चंगा होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत मुझे अंदर से डीप से मुझे ये हफ्ते में मुझे ये सीख मिला कि मुझे किसी की विरोध या कुछ भी कड़वाहट, छोटी सी भी कड़वाहट रहेगा तो वो मुझे अंदर से अंदर खा जाएगा। तो मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में ये साल में हुआ था। हम लोग एक घर पे रहते थे, जो पुराने घर पे थे, वो ओनर, हमारा रेंट ख़त्म हो गया था, जो हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था और हमको खाली करना था। तो मैंने वो ओनर को पूछा कि हमारा जो एडवांस है वो आप सेटल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो आदमी ने एक गलत तरीका या उसके मन पे क्या था मालूम नहीं, उसने बोला कि नहीं आप कुछ बोलकर उसने वो पैसा बोला कि मुझे नहीं रिटर्न मिलेगा या आपका ये है पेंडिंग है करके उसने वो कुछ बहाना बनाकर उसने उसको मना कर दिया। मतलब कई बड़ा रकम था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इसको मैनेज करूं, मेरे को नया घर ढूंढना है, कैसा जाऊं मैं। तो प्रभु के हाथ में पहला बहुत निराश हुआ था, मन के मन ही उस आदमी के खिलाफ मैंने मन के मन बहुत उसको कोशा या उसको गालियाँ दी, ऐसा मन पे बहुत कुछ हुआ था। तो फिर मैंने कई भाई से बात किया कि ऐसा सा परिस्थिति है, क्या करूं मैं, मेरे को दूसरा घर भी देखना है, मेरे पास जो सेविंग्स है वो डालना पड़ेगा। तो प्रभु ने पता नहीं कुछ अद्भुत तरीके से उसने सब कुछ एक नियमित समय में सब कुछ उसने करके दिया। नया घर पे भी चले गए और हम आके सेटल भी हो गए। लेकिन मैंने कोशिश भी की थी, वापस कोशिश की कि उस आदमी से बात की कि मेरे को जो एटलीस्ट कुछ रकम दीजिए, उसमें से आपको जो काटना काट के कुछ रकम मुझे हाथ में दे दीजिए। तो उसने वो मना ही कर दिया, कुछ वापस वही बना। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी ये प्रभु का हाथ में छोड़ देता हूँ। प्रभु चाहता है कि अगर वो पैसा मिले तो मुझे अच्छा है, नहीं तो जैसा चलाता है वैसा चला है। तो ऐसा कई महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने प्रभु का हाथ में छोड़ दिया कि ये आदमी को आप अपना तरीके से देख लीजिए, अगर दे रहा उसका मन बदल रहा है तो आप करा दीजिए। लेकिन एक समय ऐसा है कि वो कई महीने हो गए थे, कम से कम साल हो गया था। तो मैं अपना काम से ऐसे लौट रहा था और वही आदमी मेरा सामने से ऐसा आ रहा था। तो मैंने उसको ऐसा देखा और एक अंदर कड़वाहट, एक बिटरनेस आ गया था और देखा कि यह आदमी अभी तक जिंदा है और इसको प्रभु ने कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने बोला प्रभु का ये एक मन से मेरा कड़वाहट अपने आप मंदिर से आ रहा था कि प्रभु आप तो बोलते थे कि मैं सही समय पे उसको मैं देख लूँगा। तो ये वचन मेरे को पास आ रहा था कि अभी तक इसका समय आया ही नहीं है, ताकि इसको कुछ हुआ नहीं या अच्छा चल रहा, अट्टा गट्टा है, चल रहा है मेरे सामने से। तो मैंने घर पे आकर मेरा वाइफ को भी बोला, मैंने वो आदमी को देखा था जो अपना ओनर था लास्ट टाइम। तो मैं बोला ये कैसा स्पिरिट है। बाद में मुझे प्रभु ने बात किया कि ये स्पिरिट जो है ये गलत है, वो दे ना दे, बट तुम्हारा जो स्पिरिट है वो गिर चुका था। तो मैंने प्रभु को उसी समय उस आदमी के लिए मैंने क्षमा किया था कि मैं अपने आप को कि मुझे कभी भी दिखे या कभी भी मेरे को सामने दिखे, एटलीस्ट मैं उसको हाय तो बोलूँ, स्माइल करूँ और वो उसको पूरे मन से मैं उसको वो कड़वाहट निकाल दूँ। तो प्रभु ने वो
जो है ये तभी मैंने ये उदाहरण देखा कि इस छोटी बच्ची का मन पे इतना अच्छा विचार है, तो मेरे मन पे क्यों नहीं। तो मैंने प्रभु को अपने आप को समर्पित किया कि मुझे कभी भी किसी की तरफ, ना ही वो आदमी की तरफ, या ही मैं काम पे हूँ या घर पे हूँ या कहीं पे भी मेरा सराउंडिंग जो भी है, मैं किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करूँ। ये मैं प्रभु से विनती करता था, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु का जो पीस, जो उन शांति की आत्मा है, वो मेरे अंदर आ जाए।